हेलो साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा सेशन है आरटेट 2011 के भाग 2 में, जिसके अंतर्गत सेक्शन थर्ड और सेक्शन 4 का अध्ययन करेंगे। सेक्शन थर्ड के अंतर्गत हमारी लैंग्वेज द्वितीय लैंग्वेज के अंतर्गत इंग्लिश रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज का हमारा पहला सवाल है 61। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ नाउन? ऑप्शन ए इंटरेस्टिंग, ऑप्शन बी डेवलप, ऑप्शन सी टीचर, ऑप्शन डी ब्रेव। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी टीचर। टीचर इसमें है जो संज्ञा है, बाकी सब हैं वो वर्ब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। फिल इन द अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर। आई हैव नॉट गॉट खाली जगह मनी इन माई बैंक अकाउंट। ऑप्शन ए एनी, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी ए फ्यू, ऑप्शन डी फ्यू। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए एनी। Next question 63rd. Supply the correct form of the verb remember in the following sentence. I खाली जगह your name. Option A am remembering. Option B remember. Option C was remembering. Option D have remember. So right answer of this question is option B remember. नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीक आउट द करेक्ट वर्ब फॉर्म। इनमें से सही करेक्ट वर्ब फॉर्म भरनी है। सी वाज वॉकिंग अलोंग द रोड व्हेन सी खाली जगह हिम। ऑप्शन ए मेट, ऑप्शन बी हैव मेट, ऑप्शन सी वाज मीटिंग, ऑप्शन डी मीट। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। सप्लाई अ मॉडल विच एक्सप्रेस एबिलिटी। उस मॉडल को बताना है जो अपनी एबिलिटी दर्शाता है, अपनी क्षमता दर्शाता है। ऑप्शन ऑल ऑफ देम खाली जगह स्पीक 3 लैंग्वेजेज। ऑप्शन ए मैन, ऑप्शन बी विल, ऑप्शन सी मस्ट, ऑप्शन डी कैन। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। वी मस्ट कम बैक बाय 6। मस्ट इन द above sentence expresses option A possibility, option B advise, option C desire, option D necessity. So right answer of this question is option D necessity. Next questions. Complete the phrasal verb in the following sentence. You may try hard to hide the truth, but one day the truth will come खाली जगह। ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी ओवर, ऑप्शन सी out, option D at. So right answer of this question is option C out. Next question 68. Complete the phrasal verb in the following sentence. People have been complaining about the price going खाली जगह every day. Option A up, option B through, option C after, option D in. So right answer of this question is option A up. Next questions. Complete the phrasal verb in the following sentence. Many parents were at the railway station to see खाली जगह their children. Option A away, option B at, option C off, option D after. So right answer of this question is option C off. Next question 70. Which one of the following phrasal verb means to remove? Option A put on, option B take off, option C put up, option D get off. So right answer of this question is option B take off. Next question 71. We decided to put off our visit to Kashmir till October. हमने ये निर्णय लिया है कि हमारी कश्मीर यात्रा को कुछ दिनों के लिए टाल देते हैं। पुट ऑफ इन द अबव सेंटेंस मीन्स इसमें पुट ऑफ का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अरेंज, ऑप्शन बी प्लान, ऑप्शन सी रिजेक्ट, ऑप्शन डी पोस्टपोन. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पोस्टपोन. There isn't enough money, so we must cut down expenses. Cut down in the above sentence means इसमें cut down का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए reduce in size or amount, ऑप्शन बी stop, ऑप्शन सी increase in size or amount, ऑप्शन डी revise. So right answer of this question is option A reduce in size or amount. Next question 73rd. They are repairing the bridge. They are repairing the bridge. Option the passive voice of the following sentences will be option A the bridge is repaired, option B the bridge are being repaired, option C the bridge is being repaired, option D
The bridge has been repaired. So right answer of this question is option C. The bridge is being repaired. Next question 74. Pick out the correct passive voice of the following sentence. निम्नलिखित वाक्य का सही पैसिव वॉइस बनाना है. They carried the injured player of the field. Option A of the field was carried by the injured player. Option B, the injured player was carried off the field by them. Option C, the injured player be carried off the field. Option D, the injured player has been carried off the field. So right answer of this question is option B, the injured player was carried off the field by them. Next question 75. He said, Kavita, when is the next train? The above sentence in reported speech will be option A. He asked Kavita that when the next train was. Option B. He asked Kavita was when was the next train. Option C. He asked to Kavita that when is the next train. Option D. He asked Kavita when the next train was. So right answer of this question is option D. He asked Kavita when the next train was. Next question 76. The doctor said to me, do not swim in cold water. In reported speech, the above sentence will be, the doctor advised me. Option A, do not swim in cold water. Option B, that do not swim in cold water. Option C, not to swim in cold water. Option D, to not swim in cold water. So right answer of these questions is option C, not to swim in cold water. Next question 77. Pick out the sentence which has the same meaning of as the following sentence. No person in my village is as wise as my uncle. Option A, my uncle is the wisest person in my village. Option B, there is no wise person in my village. Option C, my uncle is the only wise person in my village. Option D, my uncle is wiser than some people in my village. So right answer of this question is option A, my uncle is the wisest person in my village. मेरे अंकल हैं जो गांव के सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट चतुर व्यक्ति हैं. अगला सवाल है 78. पिक आउट द अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस टैग फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. You didn't see him. Option A, didn't you? Option B, did you? Option C, isn't it? Option D, aren't you? So right answer of these questions is option B, did you. Next question 79. The word advocate is similar meaning to. इसमें वर्ड एडवोकेट का समानार्थी शब्द क्या है. ऑप्शन ए एडवाइजर. ऑप्शन बी स्कॉलर. ऑप्शन सी सपोर्टर. ऑप्शन डी लायर. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी लायर. नेक्स्ट क्वेश्चन 80. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड प्रिसाइज. इनमें से इस शब्द के समानार्थी प्रिसाइज शब्द के समानार्थी शब्द कौन सा है. ऑप्शन ए ब्रीफ. ऑप्शन बी एक्सकेट. ऑप्शन सी प्रीसियस. ऑप्शन डी एक्सपेंसिव. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी एक्सकेट. नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड फेमिलियर इज. फेमिलियर शब्द का विलोमार्थी शब्द कौन सा है. ऑप्शन ए रिलेटेड टू अ फैमिली. ऑप्शन बी पर्सनल. ऑप्शन सी स्ट्रेंज. ऑप्शन डी अनफ्रेंडली. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी स्ट्रेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन 82. द वर्ड क्रिएटिव इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू. क्रिएटिव शब्द का ऑपोजिट या विलोमार्थी शब्द कौन सा है. ऑप्शन ए डिस्ट्रक्टिव. ऑप्शन बी पॉजिटिव. ऑप्शन सी आर्टिस्टिक. ऑप्शन डी पेसिमिस्टिक. तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए
डिस्ट्रैक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीक आउट द वर्ड विच हैज़ बीन करेक्टली स्पेल्ड। ऑप्शन ए, इनमें से कौन सा वह वर्ड है जो मीनिंग रूप से सही है, स्पेलिंग सही है। ऑप्शन ए ओबीडेंट, ऑप्शन बी ओबीडेंट, ऑप्शन सी ओबीडेंट, ऑप्शन डी ओबीडेंस। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी OBEDIENT, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज बीन करेक्टली स्पेल्ड। ग्रामर रूप से करेक्टली स्पेल्ड, इनमें से कौन सी जो वर्ड हैं वो एकदम मीनिंग रूप से सही है। ऑप्शन ए GRAMAR, ऑप्शन बी GRAMMAR, ऑप्शन सी GRAMMER, ऑप्शन डी GRAMER। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी GRAMMAR। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 to 86, read this following stanza and answer the questions. 85 questions number, the line like ruined monument on desert plain is an example of option A simile, option B metaphor, option C elegy, option D hyperbole. So right answer of this question is option A simile. जिस वाक्य में या जिस स्टेंजा की लाइन में लाइक शब्द आता है तो वो सिमली अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज गिव्स अस एज एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। ऑप्शन ए हार्प ऑफ माई कंट्री, ऑप्शन बी स्ट्राइक द स्ट्रेन, ऑप्शन सी विथ हर फेटल चैन, ऑप्शन डी डिजोलेट आर्ट थऊ। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी स्ट्राइक द स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, अ सोनेट यूजुअली कंटेन्स ऑप्शन ए 8 लाइन्स, ऑप्शन बी 6 लाइन्स, ऑप्शन सी 12 लाइन्स, ऑप्शन डी 14 लाइन्स। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी 14 लाइन। सोनेट में साधारणतः कितनी लाइनें होती हैं, तो 14 लाइनें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8 to 90, पिक आउट द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। 88 से 90 तक प्रश्नों में फोनेटिक उच्चारण को बताना है। और प्रश्न संख्या 88वां, लाइक के अंतर्गत कौन सा फोनेटिक उच्चारण है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसके अंतर्गत सही आंसर है ऑप्शन ए LAIK। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, ट्री के अंतर्गत कौन सा फोनेटिक उच्चारण है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, दिज के अंतर्गत कौन सा फोनेटिक उच्चारण है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। इसके साथ ही ये इंग्लिश सेकंड सेक्शन का जो हमारा थर्ड सेक्शन पूरा हुआ, सेकंड लैंग्वेज। अब शुरू करेंगे भाषा सब्जेक्ट, जो सोशल साइंस हमारा सब्जेक्ट है वो। सेक्शन फॉर सोशल स्टडीज, सामाजिक अध्ययन। प्रश्न संख्या 91, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन ए अनेकता में एकता, ऑप्शन बी अशिक्षा, ऑप्शन सी स्वावलंबन, ऑप्शन डी प्रादेशिकता। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए अनेकता में एकता, यूनिटी इज डेस्टिनिटी, डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां प्रश्न है, नगरीकरण परिणाम है। नगरीकरण जो हुआ है किसका परिणाम है। ऑप्शन ए शैक्षिक विकास का, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास का, ऑप्शन सी ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन का, ऑप्शन डी कृषि विकास का। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या के पलायन का। प्रश्न संख्या 93वां,
क्षेत्रीयतावाद मुख्य कारण है। ऑप्शन ए गरीबी का, ऑप्शन बी सामाजिक तनावों का, ऑप्शन सी बेरोजगारी का, ऑप्शन डी वैश्वीकरण का। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सामाजिक तनावों का। अगला प्रश्न है 94वां। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन ए शिक्षा के उद्देश्यों का, ऑप्शन बी शिक्षण विधियों का, ऑप्शन सी शिक्षण तकनीक का, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है वो ऑप्शन बी शिक्षण विधियों का अनुभव होना चाहिए सामाजिक अध्यापन के विषय वस्तु के साथ साथ। अगला सवाल है 95वां। भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारक या कारण नहीं है? भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है? ऑप्शन ए बेरोजगारी, ऑप्शन बी तीव्र जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी वृद्ध परिवार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी शिक्षा है, जो भारत में गरीबी का कारण नहीं है। किस हड़प्पाकालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है? ऑप्शन ए वृद्ध स्नानागार, ऑप्शन बी अन्नागार, ऑप्शन सी सभा भवन, ऑप्शन डी दुर्ग महल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए वृद्ध स्नानागार। प्रश्न संख्या 97वां। भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए एल बासम का, ऑप्शन बी वी.एम. स्मिथ का, ऑप्शन सी मैक्स मुलर का, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू का। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी वी.ए. स्मिथ का। प्रश्न संख्या 98। निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी कालीबंगा। अगला सवाल, हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए यात्रियों का वृत्तांत, ऑप्शन बी सिक्के, ऑप्शन सी बौद्ध साहित्य, ऑप्शन डी जैन साहित्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सिक्के। अगला सवाल 100वां। गीता है ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी स्वतंत्र महाकाव्य, ऑप्शन सी रामायण का एक भाग, ऑप्शन डी महाभारत का एक भाग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी महाभारत का एक भाग। प्रश्न संख्या 101। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन ए विदिशा, ऑप्शन बी पुरुषपुर, ऑप्शन सी अहिछत्रपुर, ऑप्शन डी पैठन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी पैठन या पैठन। नेक्स्ट प्रश्न है 102। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। ऑप्शन ए सांची स्तूप से, ऑप्शन बी सारनाथ स्तंभ से, ऑप्शन सी इलाहाबाद स्तंभ से, ऑप्शन डी लुम्बिनी स्तंभ से। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सारनाथ के स्तंभ से। प्रश्न संख्या 103। लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, फायान ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा है? ऑप्शन ए रामगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला सवाल है 104। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासन के अंतर्गत बने? ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी चालुक्य, ऑप्शन डी काकतीय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए पल्लव वंश के समय। अगला सवाल, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया? ऑप्शन ए महाजनपद काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी कुषाण काल, ऑप्शन डी मौर्य काल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी मौर्य काल। अगला सवाल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन डी अजमेर में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी में। अगला सवाल है, नूहे सिपीहर के रचनाकार हैं। नूहे सिपीहर का रचनाकार हैं। ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी दारा शिको, ऑप्शन डी शेख निजामुद्दीन औलिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अमीर खुसरो। अगला सवाल,
दक्षिण भारत में सिस्ती सिलसिले का प्रथम या प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन ए गुलबर्गा, ऑप्शन बी गोलकुंडा, ऑप्शन सी बीजापुर, ऑप्शन डी बीदर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए गुलबर्गा। अगला सवाल 109, संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई? ऑप्शन ए सांबर, ऑप्शन बी आम्बेर, ऑप्शन सी नारायणा, ऑप्शन डी पुष्कर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी नारायणा। अगला सवाल, संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पीपासर, ऑप्शन बी गांगरोन, ऑप्शन सी जैतारण, ऑप्शन डी नागौर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए पीपासर। अगला सवाल, दस्तक शब्द से क्या अर्थ है, तात्पर्य है? दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए गुलामी, ऑप्शन बी फैक्ट्री, ऑप्शन सी बंदरगाह और ऑप्शन डी शुल्क मुक्त व्यापार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी शुल्क मुक्त व्यापार। दस्तक शब्द का अर्थ है शुल्क मुक्त व्यापार। अगला शब्द अगला प्रश्न 112, अकबर के चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 के समय वहाँ का शासक कौन था? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी महाराणा उदय सिंह, ऑप्शन सी जयमल, ऑप्शन डी महाराणा अमर सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप के पिताजी। अगला सवाल 113, किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अकबर। प्रश्न संख्या 114, कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की थी? कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन ए मनुसी, ऑप्शन बी बर्नियर, ऑप्शन सी थेवनॉट, ऑप्शन डी टेवर्नियर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी टेवर्नियर। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 115, आईन अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियां का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 66। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 66। अगला सवाल है 116, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए तांत्या तोपे, ऑप्शन बी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी नाना साहिब, ऑप्शन डी कुंवर सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी नाना साहिब। प्रश्न संख्या 1857 के दौरान प्रश्न संख्या 117, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माजा प्रवास के लेखक हैं? ऑप्शन ए विष्णु भट्ट गोडसे, ऑप्शन बी सीताराम पांडे, ऑप्शन सी नारगेट, ऑप्शन डी मंगल पांडे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए विष्णु भट्ट गोडसे। प्रश्न संख्या 118, महान नागा महिला गिंडाल्यू को रानी की उपाधि किसने दी? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी गुजराती और ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अंग्रेजी। अगला सवाल, ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए? ऑप्शन ए 1858, ऑप्शन बी 1859, ऑप्शन सी 1860 और ऑप्शन डी 1861। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 1858 में। अगला सवाल 121, भारतीय संविधान लागू किया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को और ऑप्शन डी 26 जुलाई 1950 को। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान भाग 4 अनुच्छेद 51A में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य वर्णित हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 11। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन
ऑप्शन ए 10। अगला सवाल है 123वां, संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1930। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946। अगला सवाल 124वां, भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या है? ऑप्शन 6, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 5। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 6। इससे पहले 7 मूल अधिकार थे, जिसमें धन का मूल अधिकार या संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया गया। अगला सवाल 125, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए प्रजातांत्रिक पद्धति, ऑप्शन बी मूल अधिकार एवं कर्तव्य, ऑप्शन सी प्रत्येक नागरिकों को रोजगार की सुविधा सुरक्षा, ऑप्शन डी स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा। अगला सवाल 126, राजस्थान से लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या है? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 30 और ऑप्शन डी 25। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 25। प्रश्न संख्या 127, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है? ऑप्शन ए भारत के नागरिकों द्वारा, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी समस्त मुख्यमंत्रियों द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। प्रश्न संख्या 128, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है? ऑप्शन ए प्रमुख सेनाध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रमुख न्यायाधीश, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 129, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। अगला सवाल, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी विपक्ष का नेता, ऑप्शन सी गृह मंत्री, ऑप्शन डी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति। अगला सवाल 131वां, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी अंटार्कटिका। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी एशिया। प्रश्न संख्या 132, यू आकार की घाटी निर्मित होती है? ऑप्शन ए नदियों द्वारा, ऑप्शन बी हिमानी द्वारा, ऑप्शन सी हवा द्वारा, ऑप्शन डी भूमिगत जल द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी हिमानी द्वारा। प्रश्न संख्या 133, परतें किन चट्टानों में होती हैं? ऑप्शन ए आग्नेय, ऑप्शन बी रूपांतरित, ऑप्शन सी अवसादी, ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अवसादी चट्टानों में। प्रश्न संख्या 134, वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी सौर मंडल, ऑप्शन सी ओजोन मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सौर मंडल। प्रश्न संख्या 135, विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर है? ऑप्शन ए लाल सागर, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी मृत सागर, ऑप्शन डी बाल्टिक सागर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मृत सागर। प्रश्न संख्या 136, भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी गंगा का मैदान, ऑप्शन सी थार का मरुस्थल, ऑप्शन डी दक्षिण का पठार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी दक्षिण का पठार। प्रश्न संख्या 137, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? ऑप्शन ए ज्वारीय वन, ऑप्शन बी शीतोष्ण वन, ऑप्शन सी मृस्थलीय वन, ऑप्शन डी भूमध्य सागर वन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए ज्वारीय वन। प्रश्न संख्या 38वां, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है? ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिमी मानसून, ऑप्शन बी पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, ऑप्शन सी शीतलहर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। अगला सवाल है, सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं?
ऑप्शन ए पेट्रोसायन, ऑप्शन बी सूती वस्त्र, ऑप्शन सी रासायनिक उर्वरक, ऑप्शन डी सीमेंट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी रासायनिक उर्वरक। प्रश्न संख्या 140 भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी व्यास। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सतलज नदी। अगला सवाल है 141वां, राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। ऑप्शन ए गंगानगर हनुमानगढ़, ऑप्शन बी कोटा बारा, ऑप्शन सी बूंदी कोटोंग, ऑप्शन डी जयपुर दौसा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कोटा बारा। प्रश्न संख्या 142वां, राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए भीलवाड़ा, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी नागौर, ऑप्शन डी जयपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी नागौर। प्रश्न संख्या 143वां, वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है। वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है। ऑप्शन ए सिंचाई के लिए, ऑप्शन बी कृषि के लिए, ऑप्शन सी जल विद्युत उत्पादन के लिए, ऑप्शन डी भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। प्रश्न संख्या 144वां, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित नगर हैं। ऑप्शन ए बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, ऑप्शन बी गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ऑप्शन सी जयपुर, अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर, ऑप्शन डी जयपुर, टोंक, बूंदी कोटा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अगला सवाल है 145वां, अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर है। ऑप्शन ए जरगा, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी तारागढ़, ऑप्शन डी असलगढ़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी शेर। सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी है गुरु शिखर। अगला सवाल प्रश्न संख्या 146, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था। ऑप्शन ए महाराव राम सिंह प्रथम, ऑप्शन बी महाराव राव सिंह द्वितीय, ऑप्शन सी महाराव माधो सिंह, ऑप्शन डी महाराव उमेद सिंह फर्स्ट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी महाराव राम सिंह द्वितीय। प्रसिद्ध सालिम सिंह की हवेली है। ऑप्शन ए नवलगढ़ में, ऑप्शन बी मुकुंदगढ़ में, ऑप्शन सी पिलानी में, ऑप्शन डी जैसलमेर में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी जैसलमेर में। प्रश्न संख्या 148, किस जिले में गोगा मेड़ी मेला लगता है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी गंगानगर, ऑप्शन सी हनुमानगढ़, ऑप्शन डी चूरू। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी हनुमानगढ़। प्रश्न संख्या 149, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल हुआ। ऑप्शन ए लोहगढ़ भरतपुर, ऑप्शन बी बाला किला अलवर, ऑप्शन सी मांडलगढ़, ऑप्शन डी अचलगढ़ आबू। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए लोहागढ़ भरतपुर। आज के सेशन का अंतिम सवाल है 150वां, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन बी बलवंत सिंह मेहता, ऑप्शन सी भूरेलाल बया, ऑप्शन डी रमेश चंद्र व्यास। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी बलवंत सिंह मेहता। इसके साथ ही आज का हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। जय हिंद।